योगः कर्मसु कौशलम. Good afternoon again, dosto. I Nikunj Patel on behalf of HRDC, Gujarat University and fellow participant of third online refresher course. Welcome once again, Dr. Vimal Trivedi sir. For today's second live session, he will deliver his lecture on data analysis and data interpretation with SPSS. In research identification, collection and interpretation of data is highly important. For social science research, SPSS is a very significant tool for data analysis. We thank Dr. Vimal Trivedi sir. Again, I welcome you, sir, to deliver the lecture. Over to Trivedi sir. So now I will shift from we have already discussed about the data shape. Data shape means what kind of data we are collecting, and now the second stage is once we have a information, once we have a data, and the data is numeric. So the second stage is what to do with the data. Next stage is what to do with the data. So that is the data analysis part, and I will try to give you overview how to enter the data, how to process the data, how to analyze the data, and then interpretation of result. That is also important. Important why? Because that once you interpret the data, once you interpret the result, then the inbuilt issue emerge from your research, and that is your next stage. That is your next stage of research. हम कहते हैं कि हम जब कोई रिसर्च इश्यू को हैंडल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, तब इनबिल्ट कोई एक रिसर्च इश्यू उसमें से इमर्ज होता है जो हमारा ये नेक्स्ट रिसर्च प्रॉब्लम होता है. तो जनरली आउटकम का मतलब दो होता है. एक आपका खुद जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी में डेटा को समझने का, और दूसरा जो डेटा नई चीज दे रही है जिसके बारे में और डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है. तो हमेशा रिसर्च में से दो आउटकम होता है. एक आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एग्जामिन करना, और दूसरा कि जो चीज आपको छूट गई है और आपको लगता है कि ये इश्यू भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इमर्ज होता है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि स्लाइड से मैं बता रहा हूँ इमेज. I will instead of sharing the window, I share the entire screen so that every time stop sharing and again share the new link. Best way is entire screen. Okay. Data analysis and interpretation with SPSS. So this is the brief description of SPSS. Measurement and scaling technique I have already covered. SPSS interface, data preparation, that is data type, variable label, value label, missing value I have already covered. But how we generate a missing value with the help of SPSS, I will show you. Data editor is just like a screen worksheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3. But here in SPSS, the moment you enter data, it appears three screens. One is data editor, second one is variable view, that is a code book, and the third one is syntax, that whatever the command you are providing, that command stored somewhere. ठीक है. जब हम एनालिसिस करते हैं तो कुछ कमांड देते हैं कि भाई मुझे ये वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये वेरिएबल का चार्ट चाहिए. तो वो जो सीक्वेंस ऑफ फ्लो है, जो इंस्ट्रक्शन का, वो इंस्ट्रक्शन भी कहीं पे स्टोर होती है. तो ये तीन स्क्रीन होता है जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं. ठीक है. तो SPSS में ये तीन स्क्रीन खुलते हैं. फिर SPSS आर यूजफुल इन अगेंस्ट द एक्सेल. Here the advantage of SPSS that here you can split the file while analysis the data. For example, आपने स्ट्रेटिफाइड सैंपल लिया है, मेल एंड फीमेल. ठीक है. गांव में गए और स्ट्रेटिफाइड सैंपल से डेटा कलेक्ट किए, या आपने गांव में दो तरीके से डेटा कलेक्ट किया, एक लैंडलेस एंड जिसके पास लैंड है. तो लैंड होल्डिंग वाले और जिसके पास लैंड नहीं है. अब ये दो पॉपुलेशन है. अब दो पॉपुलेशन में से आपने सैंपल ड्रॉप किए. ठीक है. अब मैं लिख दो आपको नोटबुक में कुछ चीज टिप्स है वो लिख दो. Whenever you have a stratified sample, the sample should be proportionate. Sample should be proportionate. इसका मतलब है
कि गांव में गए 70% लैंडलेस है और 30% के पास जमीन है, ठीक है, 30% के पास जमीन है, तो आप 10 पीपल को ले रहे हैं गांव में से, तो आपको प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा। दैट मीन्स 7 लोग लैंडलेस लेने पड़ेंगे और 3 लोग जिसके पास लैंड है वो लेने पड़ेंगे। उसको स्ट्रेटिफाइड सैंपल कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपल मीन्स प्रोपोर्शनेट सैंपल। वो बात की बात है, एनी टाइम वी कैन डिस्कस अबाउट द सैम्पलिंग एंड हाउ इट यूजफुल इन डेटा एनालिसिस, क्योंकि हर चीज का एनालिसिस के साथ इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। जब भी आप स्ट्रेटिफाइड सैंपल ले तो आपका टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, आपको बाइवेरिएट टेबल लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपने सैंपल ही स्ट्रेटा से लिया है मीन्स मिनिमम 2 स्टेटा या मोर देन 2 स्टेटा, ठीक है। 3 स्टेटा भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, 4 स्टेटा भी हो सकता है, इलिटरेट लिटरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप जितने स्ट्रेटा है वो स्ट्रेटा के अंदर क्या हो रहा है वो आपको देखने की दिलचस्पी है, इसलिए आपने स्ट्रेटिफाइड सैंपल लिया है। तो ये आप चीज ध्यान में रखिए। बाकी थियरी आई हैव नथिंग टू डू, मुझे कोई कहे कि सैम्पलिंग का थियरी कहो तो मुझे समझ में नहीं आता है, बट आई नो दैट विच सैम्पलिंग टेक्निक आई अप्लाई एट वेयर, वो इंपॉर्टेंट है। व्हाई वी आर डूइंग रिसर्च, वेयर वी आर यूजिंग टेक्निक्स एंड हाउ टू इंटरप्रेट। ओके, सो द थर्ड थिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज यू हैव ए इनकम and now you have to classified income in 3 to 4 group, that कि भाई इतने से इतनी इनकम, इतने से इतनी इनकम, तो ये आप रीग्रुप कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड एंड डिकोड ये 2 अलग टर्म है। अभी हम रिकॉर्ड समझते हैं कि जो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल लैंड है, एक्चुअल इनकम है, एक्चुअल एज है, इसको कैसे क्लासिफाइड करें, इसके लिए रिकॉर्ड कमांड है। फिर होता है कंप्यूट कमांड। कंप्यूट कमांड इज नथिंग लाइक ए इक्वल टू साइन इन एक्सेल। आप एक्सेल में इक्वल टू लिखिए तो एक्सेल समझ जाएगा कि नाउ यू आर यूजिंग फंक्शन, नाउ यू आर यूजिंग फंक्शन। आप डेटा एंटर नहीं कर रहे हैं। इक्वल टू मीन्स यू आर क्रिएटिंग ए न्यू वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जिस्टिंग वेरिएबल। क्या आपका एक वेरिएबल ऑलरेडी है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी का डेटा है, बेसिक HRA CLA डेटा है, एंड ये 3 डेटा है, तो आप एक ABC में 3 डेटा है, बेसिक HRA एंड CLA, तो आप D में लिखेंगे इक्वल टू बेसिक HRA एंड DA, दैट मीन्स इक्वल टू A + B + C, तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि D यू हैव जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ A, B एंड C, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग ए न्यू डेटा on the basis of your existing data। इसको फंक्शन कहते हैं एक्सेल में। अब वही एक्सेल का फंक्शन यहाँ कंप्यूट कमांड है। तो ये कंप्यूट कमांड से आप जनरेट कर सकते हैं। तो SPSS में मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्म कमांड है, सिलेक्शन डेटा है, एंड देन आपका एनालिसिस पार्ट आता है, जिसमें आप टेबल निकालिए, चार्ट निकालिए, ग्राफ निकालिए, ओनली स्टैटिस्टिक्स निकालिए, ठीक है, ठीक है। तो ये सब है। And the last 2 is very macro command, and that is time saving feature. How you prepared a macro command, that is अभी आप नहीं समझ सकते, वो पहले आपको SPSS समझना पड़ेगा, ये वेरी एडवांस टेक्निक है। चलिए, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ SPSS। तो why we are using SPSS, creating a data file or retrieving the existing file। आप डेटा एंटर कर सकते हैं SPSS में, या एक्सेल की डेटा को रिट्राइव करके SPSS में ला सकते हैं, जिसको कहते हैं रिट्राइव। देन डिफाइनिंग वेरिएबल। एक्सेल की जगह यहाँ SPSS में यू कैन जनरेट ए कोड बुक। फॉर एग्जाम्पल मेल इज इक्वल टू 1, फीमेल इज इक्वल टू 2, तो आपको टेबल में 1 2 नहीं आएगा, टेबल में मेल एंड फीमेल डिस्प्ले होगा। जबकि आप एक्सेल में कीजिए तो एक्सेल में 1 and 2 और पिवट टेबल इस तरह से निकलेगा। तो SPSS में यू कैन जनरेट द कोड बुक। आप पूरा क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू डाल सकते हैं, फिर आपको डेसिमल 2 है कि 1 है डेसिमल, वो कर सकते हैं। तो ये सब आप कोडबुक के मुताबिक आप यहाँ कोडबुक एंटर कर सकते हैं। फिर आप यहाँ SPSS से अगर आपको एवरेज लेना है, आप माइंड दिया, मैं कुछ चीजें लिखते बोलूंगा, वो आप लिखते रहिए। आपको जब एवरेज निकालना है, एवरेज इनकम, एवरेज एज, एवरेज लैंड, तो आप ध्यान में रखिए कि आपका डेटा नॉर्मल है कि नहीं, समझे।
डेटा नॉर्मल नहीं है, इसमें है एसपीएसएस में नॉर्मलिटी देखने का है, टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी। अगर डेटा नॉर्मल नहीं है तो आप एवरेज नहीं यूज कर सकते, तो आपको मीडियन यूज करना पड़ेगा, मीन की जगह मीडियन यूज करना पड़ेगा। ये स्टैटिस्टिक्स में ये उसका एजम्पशन है। तो कैसे नॉर्मलिटी देखा जाए, जिसको कहते हैं ना घंटाकार, डेटा को बेल आकार का, अगर बेल आकार का डेटा नहीं है तो आप नहीं मीन कर सकते। मैं सिंपल चीज बताता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल चीज बताता हूँ। आप मान लीजिए आपकी कॉलेज में आपको एवरेज इनकम निकालना है, और आपने सभी टीचिंग स्टाफ को ले लिया, सभी टीचिंग स्टाफ को सैलरी पूछ ली, और फिर आप कहेंगे कि कॉलेज की एवरेज इनकम इतनी है। ये सही है? लेट मी से, इज इट करेक्ट? No. नो सर। नो सर, नो Why? सर, नो सर। व्हाई? क्योंकि कॉलेज में और भी कर्मचारी होते हैं, क्लेरिकल Non-teaching staff होते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं। Exactly. वो Now सबकी understand? So understand, that means you are saying that data is not normal. Data is not normal. आप डेटा वो निकालोगे तो वो बेल कर्व का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसलिए आएगा क्योंकि एक प्यून है जिसकी सैलरी फिक्स है, या होगी स्केल पे होगी तो भी बहुत मिनिमम होगी, 25 to 30,000 होगी, और एक प्रोफेसर है जिसकी सैलरी 2 लाख के ऊपर है। तो जब वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो कि 20,000 से लेके ये है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको रिप्रेजेंटेटिव करना पड़ेगा कि लोअर कैटेगरी में कितने कर्मचारी है, मिडिल इनकम के कितने कैटेगरी है, हायर इनकम में कितने कैटेगरी है, और फिर उसमें से फिर सैंपल लेना पड़ेगा, तब आपका नॉर्मल कर्व आएगा, तब आपका बेल आकार का आएगा। और इसलिए स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं 5% लोअर साइड से काटो, 5% अपर साइड से काटो। सुना है ना आपने, ऐसा सुना है ना? आर यू अवेयर अबाउट इट? यस सर, सिग्निफिकेंट सर। हाँ, तो ये इसलिए कर, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि स्टैटिस्टिक यूज करना वेरी इजी, बट ऐसा ना हो कि आप जो स्टैटिस्टिक यूज करें वो मिसयूज हो, ठीक है? इसलिए कहते हैं वैल्यू ऑफ पी इज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ स्टैटिस्टिक। पी वैल्यू से जो सिग्निफिकेंस कहते हैं, तो पी का सबसे ज्यादा मिसयूज स्टैटिस्टिक्स में होता है, वो मैं बाद में बताऊं। तो ये एसपीएसएस का ये है। एसपीएसएस आपको चाहिए तो ये एसपीएसएस के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री मिलते हैं, जैसे जेएएसपी। ये जेएसपी जो सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड कीजिए और यू विल गेट द फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट लाइक एसपीएसएस, लेकिन बेटर देन एक्सेल आपको फ्री मिल जाएगा। आप विदिन 5 मिनट्स में आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज एसपीएसएस? SPSS is a statistical package for social science available in 2. One is in Mac and second one is Window. वो डेटा एंट्री के लिए, एनालिसिस के लिए, आपको डिसीजन मेकिंग के लिए है। और नाउअडेज एसपीएसएस में आपका QR कोड से इंटरव्यू शेड्यूल भी डायरेक्टली एंटर हो जाता है, लाइक गूगल फॉर्म। आप गूगल फॉर्म ले आइए तो एसपीएसएस में डायरेक्टली डेटा एंट्री हो जाती है। तो इस तरह का फीचर एसपीएसएस में है। हाँ, एसपीएसएस जो है वो मल्टी मॉड्यूल है। आपको मल्टी मॉड्यूल का बताऊं, मल्टी मॉड्यूल मीन्स म्यू नहीं हो रहा है, अभी मूव हो रहा है? हाँ, हो रहा है सर। मूव हो रहा है। यस यस। एसपीएसएस जैसा ये सॉफ्टवेयर है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये भी आप डाउनलोड कर दीजिए, मैंने दिया है। मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, मैं राजेंद्र भाई को पीपीटी दे दूंगा, ही विल सर्कुलेट यू। Okay, so these are the two software free of cost. One is JSP and second one is statistically analysis software. Then there is no need, but you have to learn the SPSS. आप SPSS सीखोगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको याद रहेगा। सेकेंड थिंग, SPSS इज अ मल्टी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर। मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि कल आप SPSS में एक्सपर्ट हुआ है एंड यू हैव टू परचेज SPSS। SPSS इज डिफरेंट देन MS ऑफिस। आप देखिए MS ऑफिस आप खरीदते हैं, आप 7 मॉड्यूल और 8 मॉड्यूल है, हार्डली आप यूज करते हैं 3 मॉड्यूल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, 3 से ज्यादा आप नहीं यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन ये लोग आपके पास 8 मॉड्यूल का पैसा लेते हैं MS ऑफिस का। SPSS में ऐसा नहीं है। SPSS में
यू कैन चूज एनी 3 मॉड्यूल। आपके पास पैसा कम है तो 3 मॉड्यूल लीजिए और 3 मॉड्यूल का पैसा देके आप SPSS यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ SPSS and this is the manual of SPSS. You can download the manual, but I'm advised that don't download this SPSS manual क्योंकि ये 2600 पेजेस का मैनुअल है और आई डोंट थिंक कि ये 2600 पेजेस का मैनुअल आप पढ़ सकोगे। बेस्ट वे मेरी ये PPT है 100 स्लाइड की, वो अगर आप ठीक तरीके से पढ़ लोगे तो आप SPSS यूज कर सकोगे। ये SPSS हेल्प है, मैं टू क्विक 2-2 मिनट में बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए डेटा एनालिसिस, व्हेन यू आर एनालाइजिंग द डेटा एंड यू आर स्टक समवेयर and you want some help and no one is nearby, so you can get the help from this IBM Knowledge Center, SPSS Forum, IBM SPSS, and I am a registered member of this all forum. And then IBM Forum provide me yearly charges. They will not charge from the user. They will not charge. This is a free service. But IBM Knowledge Center provide me some money to my account because I am giving services to the group. Also, SPSS statistical tutorial available. For example, Andy Field is a well-known social scientist. He wrote a book and then he published his book on YouTube. So आप ये डाउनलोड कर लीजिए, एंडी फील्ड का यूट्यूब चैनल है। अगर आपको बुक करना है तो UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का एक कोर्स वर्क है, जैसे PhD का कोर्स वर्क होता है ना, ऐसा ही ये कोर्स वर्क UCLA का है। इस तरह की ये मैंने वेबसाइट दी है जो ऑथेंटिक है। SPSS में 1000 ऑफ है, लेकिन मुझे लगता है कि SPSS में ये ऑथेंटिक है। इसमें एक मेरी भी है यूट्यूब चैनल। एक और है रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक, ये लिंक्डइन पे है। लिंक्डइन पे रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक एक ग्रुप है जहां आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। यू कैन अपलोड योर क्वेश्चन एंड more than 1,80,000 members of this group, they provide you the services. Okay, and the question raised by the student or someone don't know who is giving the answer. Okay, so that is the beauty. Second thing is, suppose someone has given the answer, you can check his profile or you can check her profile. What is her designation, where she is, what are her publication. So once you understand that yes, she is good research scholar, she is good in publication, so that I can consider her or his answer for my question. So this kind of facility available in research methodology and statistics, and I am available. You can see that बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर दिए हैं. तो ये इम्पोर्टेंट लिंक है on LinkedIn. So you can use this forum rather than Facebook and WhatsApp. Now, to show how SPSS statistic can help data analysis and interpret the result, now I will give you some overview. I have seen that students have a confusion on objective and hypothesis. Sometimes they write objective as it is as a hypothesis. No, it should not be. And that is why I have given one example. For example, I want to know those who are getting good marks, those who are in online education, those who are getting good marks, they have a good internet access. In good internet access means speed, then without break, like that. So I want to examine, and this is my hypothesis. And my hypothesis is, not hypothesis, my objective. My objective is to examine, is there an association between academic performance and internet access? Is it clear? समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ, कि मुझे एग्जामिन करना है मुझे कि क्या एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है या जो मैंने एग्जाम ली उसमें जो मार्क्स आया वो जो परफॉर्मेंस है वो इंटरनेट एक्सेस के साथ इज देयर एनी एसोसिएशन?
तो मेरा हाइपोथेसिस क्या होगा? नल हाइपोथेसिस, इंटरनेट एक्सेस मेड नो डिफरेंस. दैट मीन्स इंटरनेट एक्सेस हैज नथिंग टू डू विद द एकेडमिक परफॉर्मेंस. कि ये जो मार्क्स आया है वो मार्क्स को इंटरनेट एक्सेस के साथ कोई लेना देना नहीं है. That is my null hypothesis. And H1 hypothesis, that is alternate hypothesis, is internet access made difference. That means there is a effect. There is a effect. Internet access की effect है, इसलिए मार्क्स आया. तो ये आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव और null hypothesis करना पड़ेगा. Now we can come to our today's lecture. What to do with the data? Once the data analysis is over, second stage is interpretation of result. Writing presenting a final research report, emerging new issue, and publish the work. So ये 3 स्टेज है. ठीक है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, और फिर जो आपने राइट की उसका मोनोग्राफ, आर्टिकल जो भी है उसको आप पब्लिश कीजिए. सो SPSS जस्ट लाइक एक्सेल, SPSS में भी वेरिएबल, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग. मैं 2 बता देता हूँ. SPSS में 2 प्रकार के डेटा होते हैं. वन न्यूमेरिक, फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल, 1 इज मेल एंड 2 इज फीमेल. तो आप एंटर 1 and 2 करते हैं तो ये न्यूमेरिक हुआ. स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स अल्फा न्यूमेरिक. स्ट्रिंग मीन्स अल्फा न्यूमेरिक. द सेम डेटा, m is equal to male, f is equal to female. So when you enter m is equal to male and f is equal to female, then your types of data is string. String means non-numeric. String means non-numeric. Okay. So now I come to this data. Okay. So now we have to enter this data and then we will process this data. How many participants have already fill up the questionnaire and put the numeric data in this box? Anyone? Hello? Yes, Hello? sir. I have filled up. You have? Hello? Yes, sir. You have? Yes, sir, I have. Who did? Yes, sir, Ramesh Kumar. Okay, Ramesh Kumar. So first, shall we enter this data with the help of Excel, or shall we data enter directly in SPSS? Do you want to know how to transform Excel data file to SPSS? Do you want to know? Yes, sir. Okay, so better we enter this data with the help of Excel. Okay? Okay, sir. चलिए, Yes, sir. चलिए तो हम एक्सेल में जाते हैं. ओके, हम न्यू डेटा फाइल, एक्सेल न्यू, एक्सेल स्प्रेडशीट खोलते हैं. ठीक है. ओके, so a blank worksheet on your screen. Is it okay? Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Ramesh ji wanted to enter the data. हाँ, और कौन सा डेटा एंटर कर रहे हैं? ये लाइब्रेरी सर्वे. ठीक है ना, लाइब्रेरी सर्वे. ठीक है. चलिए, whenever, now I am giving you some tips. Whenever you are using Excel for data entry, some assumption made in the manual of Excel. मैंने क्या कहा कि जब आप एक्सेल का डेटा एंट्री के लिए यूज करते हैं तब एक्सेल का जो मैनुअल है, एक्सेल का जो यूज करने का जो मैनुअल है, वो मैनुअल के मुताबिक आपको डेटा एंटर करना पड़ेगा. ठीक है. चलिए, एक्सेल में 3 प्रकार के डेटा होते हैं. एक्सेल में there are 3 types of data in Excel. One is label, second one is value, and the third one is function. Okay, third one is function. चलिए, वैल्यू एंड लेबल क्या है मैं ये समझा देता हूं. ठीक है. लेबल का मतलब है जब भी आप एक्सेल यूज करते हैं डेटा एंट्री में तो रो वाइज कीजिए. समझ गए आप? इज इट क्लियर? क्योंकि why I am insisting कि row is a record, row is a unit, because whenever you want to process this data with the help of SPSS, at that time SPSS accept only row as a record. एक्सेल में आप रो वाइज डेटा एंटर कर सकते हैं, कॉलम वाइज डेटा एंटर कर सकते हैं. आइदर यू एंटर द डेटा रो वाइज लाइक दिस,
like this, okay, like this you can enter, or you can enter column wise, like you can enter column wise. एक्सेल में रो एंड कॉलम वाइज आप डेटा एंटर कर सकते हैं, but you know that, but you aware that I am entering this data, but I am analyzing this data with the help of SPSS. मैं ये डेटा को एक्सेल में एंटर करता हूं, लेकिन मैं SPSS में इसको प्रोसेस करने वाला हूं. तो तब आपका थंब रूल रहेगा, रो इज ए रिकॉर्ड. आपको रो में ही रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा. मींस ये जो रमेश जी ने जो फॉर्म भरा है, वो फॉर्म में जितना भी डेटा है वो पूरा पहली रो या सेकंड रो में आ जाए. रो इज ए शेड्यूल, रो इज ए यूनिट, रो इज ए रिकॉर्ड. ठीक है, चलिए रमेश जी आप मुझे एक के बाद एक आप डेटा एंटर करिए. चलिए सेल ए में मैं क्या एंटर करूं बताइए. हाँ One, sir. हाँ Question one. हाँ, क्वेश्चन 1. How often do you visit the library? ओके. One daily. हाँ, so code is What is Daily. one, sir? daily code. Daily. So entered 1. Okay, I will make it bigger. Okay, I will make it bigger so that you can understand. Okay, now understand 1. Then the second in the B, 2. Find a book. 2, find a book. Okay, then the C, Question 2.1. huh? Question 2.1. Access database. 0. 0. 2.2. 2.3. 0. 2.4. 0. 0. 2.1. 2.6. 2 point. 2.51. Okay, now you understand what is the problem when I am entering the data. आप बता सकते हैं कि मैं एंटर करने के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है. एनीवन? एंटर तो ठीक एंटर हो रहा है, एक्सेल के मुताबिक डेटा एंटर ठीक हो रहा है. कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? सर लेबल नहीं लगा है आपने. एग्जैक्टली. हु इज स्पीकिंग? पल्लवी भट्ट. हाँ, पल्लवी भट्ट. पल्लवी भट्ट. मैं सब पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि हम क्लैप करें. प्लीज क्लैप फॉर पल्लवी. ठीक है, ये आप समझे कि डेटा एंट्री ठीक हो रही है, लेकिन हम गलत कर रहे हैं. क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि एक्सेल के मुताबिक एक्सेल का मैनुअल कहता है कि फर्स्ट रो यू यूटिलाइज फॉर द लेबल. फर्स्ट रो यू यूटिलाइज फॉर लेबल. चलिए हम यहाँ अभी ये डेटा में एक रो एंटर कर देते हैं. इंसर्ट एक रो. ठीक है, चलिए लेबल कर देते हैं. पहला लेबल क्या है? Q1. Q1. सेकंड Q2. ओके, थर्ड Q2.1. ओके, फोर्थ Q2.2. देन इसको भी बड़ा कर दूं. हाँ, ठीक है, 2.2. देन Q 2.3. then Q 2.4. then Q 2.5. You can also simultaneously work with me. Q 2.6. Then Q 2.7. then Q 2.8. Q3. and then question 3. ओके, चलिए हम सिर्फ इतना डेटा एंटर करते हैं पहले. ठीक है, इज इट ओके? Okay, sir. चलिए रमेश जी, Yes, sir. Yes, sir. नाउ रमेश जी आप बताइए. Q1 में 1. ओके,
डेली डेली इसलिए 1, Q2 में why you are using library, what is the purpose? Reading. Question 2 में 2 is find a book. Find a book. Okay, then 2.1 0 ये 2.1 0. 2.1 क्या है? 2.1 Access database. SS database 0. Then 2.2 Find a book. 1. find a book. 2.2 में 1. 2.2 में 1 रहेगा. ओके, सो समझे आप? हाँ, फिर 2.3 0, 2.4 0 क्योंकि आप नहीं कर रहे. फिर 2.50, 2.60, 2.70, 2.8 0. समझे? इसको कहते हैं डाइकोटोमी वेरिएबल. इसको कहते हैं डाइकोटोमी वेरिएबल. 0 इज नो एंड 1 इज यस. अब आप देखिए कि अब सेकंड रिस्पॉन्स एंड क्वेश्चन 3. व्हाट इज द क्वेश्चन 3? How often do you use the library website? हाँ, तो उसका कोड क्या है? First daily, second weekly, second two. Means 2. Okay. Now the second respondent. Anyone from the second respondent? आप मुझे बताइए डेटा. आपको समझ में आ गया कि पहली इंटरव्यू शेड्यूल का डेटा इधर फर्स्ट रो में आ गया. नाउ द सेकंड इंटरव्यू शेड्यूल. चलिए बताइए. हाँ Sir, can I? हाँ, you can please. Question Question 1, 2. 2. Then Question 2, 2. Question 2.1, 1. Question 2.1 1. 1. Question 2.2, 1. 1. Question 2.3, 0. 0. Question 2.4, 0. 0. Question 2.5, 1. 1. Question 2.6, 0. 0. 2.7, 1. 1. 2.8, 0. 0. Question 3, 3. 3. Okay. Now you can see that what is the error in this data? Can you explain me? आपने कहाँ गलती की है? देखिए, आपने क्या कहा कि मैं डेटाबेस के लिए लाइब्रेरी में जाती हूँ, मैं बुक के लिए लाइब्रेरी में जाती हूँ, और 7 है कंप्यूटर के लिए लाइब्रेरी में जाती हूँ. ठीक है ना? Yes. हेलो, आपने क्या कहा? मल्टी रिस्पॉन्स से सरा. हाँ, ये मल्टी रिस्पॉन्स है. तो मल्टी रिस्पॉन्स के मुताबिक आपने किया तो यहाँ आपका कॉम्बिनेशन कोड आएगा. क्या कोड आएगा? अच्छा, ओके. आपका 2 4 आएगा. पहला तो कहाँ है 2, फिर आपका ये नहीं, पहले कहाँ आएगा 1 and 2. 1 1 2 और 7. ये आपका कोड आएगा यहाँ. 1 2 5 7 आएगा सर. 5. कहाँ 5 है? हाँ, 5 भी है. हाँ, 1 आपका 2 5 भी है. हाँ. तो 1 2 5 and 7. Yes. अब आप देखिए, आपको समझ में आया? ये कन्वेंशनल, ये पहले 20 इयर्स पहले इस तरह से कोडिंग होता था. 20 इयर्स पहले कोडिंग इस तरह से होता था. आज बिकॉज ऑफ SPSS, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सपोर्ट, आप क्या करते हैं? इस प्रकार का कोडिंग को इस तरह से करते हैं. इस तरह से ये इस तरह से आपने कोडिंग किया. क्यों? कि रिस्पॉन्स, आप देखिए क्वेश्चन कितना पूछा है? एक क्वेश्चन क्या पूछा है कि पर्पस ऑफ लाइब्रेरी यूज. ठीक है, प्रश्न एक पूछा है, आपने जवाब कितना दिया? 4 जवाब दिया. दैट मीन्स आफ्टर 100 स्टूडेंट, आर यू इंटरेस्टेड इन रिस्पोंडेंट या आर यू इंटरेस्टेड इन रिस्पॉन्स? समझिए कि आपने 100 स्टूडेंट्स को 100 स्टूडेंट को ये इंटरव्यू शेड्यूल पूछा. ठीक है, लिया, आपने डेटा कलेक्ट किया. तो 100 स्टूडेंट्स के पास से इस तरह से किसी ने 3 आंसर दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 5 आंसर दिया, तो आपके पास रिस्पॉन्स 700 या 800 हुआ या 500 हुआ. ठीक है, तो आपको परसेंटेज 500 रिस्पॉन्स में से मिलेगा और दूसरा 100 स्टूडेंट्स में से मिलेगा.
इसको कहते हैं मल्टी रिस्पॉन्स टेक्निक। इसको क्या कहते हैं? मल्टी रिस्पॉन्स टेक्निक। तो मल्टी रिस्पॉन्स टेक्निक करनी है तो हमें ये जो कोडिंग है इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन 2 में जो आउटकम है, बुक्स, डेटाबेस, न्यूज़पेपर, जेरोक्स, ये आपका वेरिएबल बन जाएगा। जो कोड है वो वेरिएबल बन जाएगा और उसको यस नो करके करेंगे। दूसरा, मैंने क्या किया, 2 की जगह क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 नहीं किया। मैंने क्या किया, क्वेश्चन 2 है तो उसका कोई आंसर है तो मैंने उसको 2.1, 2.2, 2.3, 2. तो मुझे पता चला कि क्वेश्चन 2 में 8 ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 में कितना ऑप्शन है? 8 है, क्योंकि 2.1 से 2.8 है। तो डेटा जब मैं एंटर करता हूं तो मुझे याद रहता है कि 8 ऑप्शन है, इसलिए 2.1 से 2.8 है। अगर यहाँ और भी 2 ऑप्शन होता, 2 और के रीडिंग के लिए, प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं लाइब्रेरी में जा, तो क्वेश्चन 2.9 भी आता। फिर आप कहते हैं कि वहां मैं लाइब्रेरी में मैं जाता हूं क्वेश्चन बैंक के लिए, एक कि वहां क्वेश्चन बैंक है जो यहाँ छूट गया है, तो क्वेश्चन बैंक के लिए जाता हूं। वहां आगे का 10 साल पहले का जो क्वेश्चन पेपर है उसका उन्होंने स्टोर किया है, तो क्वेश्चन बैंक के लिए जाता हूं, तो वहां क्वेश्चन 2.10 आता। तो जितना आंसर है वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। ये समझना जरूरी है। एसपीएसएस इज अ क्वेश्चन ऑफ 10 मिनट्स। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपको डेटा एंट्री करनी है। इस तरह से आप डेटा एंट्री करिए पूरा क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 13 तक। ठीक है? ओके, आप एंटर कीजिए क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन, आई विल गिव यू 5 मिनट्स। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, एंटर कीजिए। फिर मैं वो एंट्री की हुई डेटा एंट्री को मैं एसपीएसएस में कैसे लाते वो मैं आपको बताऊंगा, एंड देन आई विल प्रोसेस दिस डेटा विद द हेल्प ऑफ एसपीएसएस। ठीक है? चलिए, 5 मिनट्स, प्लीज डू द एक्सरसाइज। ओके, I will show you the Excel file. Just like Excel file, you can see like this: Q1, Q2.1, Q2.2, 2.3, 2.4, like that. Then question 3, then question 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, like that. Then again up to question 13. So these are the data I have entered with the help of student. Okay, 11 record. Now I will close this data file. Once the data enter into this, I say save as and put it into the desktop. Okay, मैं कह रहा हूँ उसको डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ फाइल को। ओके, इन द पीसी, देन से डेस्कटॉप, और मैंने कहा कि एकेडमिक लाइब्रेरी सर्वे। Yes. So now I will close this data file. Okay, close this Excel. मैंने Excel को बंद कर दिया। ठीक है? Now I will go to the invoke SPSS. I want to process this data. तो मुझे SPSS खोलना पड़ेगा। तो click the SPSS icon. Then you have a screen like a worksheet. Worksheet, data view and variable view. Data view and variable view. Data view and variable view. चलिए हम डेटा व्यू में जाते हैं क्योंकि हमको डेटा लाना है। सो व्हाट इज द कमांड इन एसपीएसएस? फाइल ओपन डेटा, एंड देयर इज अ डायलॉग बॉक्स। वी नो दैट द फाइल इज इन एक्सेल, तो क्लिक एक्सेल एंड देन वेयर इट इज इन द डेस्कटॉप। तो हम कहते हैं डेस्कटॉप पे है और हमको मालूम है कि एकेडमिक लाइब्रेरी सर्वे ये हमारा फाइल है, and then say click open. Now click open. So remember this dialog box. अब ये dialog box पढ़िए, क्या लिखा है? Read variable name from the first row of the data. इसका मतलब है कि हमेशा whenever you use Excel, the first row you utilize for the label. This is a thumb rule. That is why
SPSS मान के चल रहा है कि आपने पहली रो लेबल के लिए यूज की है, इसलिए यहां लिखा है रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ डेटा, देन से ओके, देन से ओके। सो नाउ योर SPSS डेटा कम ओवर हियर, आपका SPSS डेटा यहां आ गया, ठीक है, SPSS डेटा आ गया, ठीक है। अब आपके पास SPSS में डेटा आ गया है, तो द नेक्स्ट वन इज आपका कोड बुक, नेक्स्ट वन इज कोड बुक। तो कोड बुक कैसे एंटर करते हैं, वेरिएबल व्यू में जाइए, यहाँ आइए, दो प्रकार के लेबल है, एक वेरिएबल लेबल और दूसरा है वैल्यू लेबल, ठीक है। वेरिएबल लेबल एंड वैल्यू लेबल कैसे देते हैं, वेरिएबल लेबल Q1 क्या है, Q1 है हाउ ऑफन do you visit the library, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ये आपका वेरिएबल लेबल हुआ, ये हुआ वेरिएबल लेबल। तो होल क्वेश्चन यू कैन टाइप ओवर हियर। जो इंटरव्यू शेड्यूल में जो क्वेश्चन होते हैं वन बाय वन, ये पूरा क्वेश्चन एक बाय एक आप टाइप कर सकते हैं। Q1 का टाइटल क्या है, Q2.1 का क्या टाइटल है, लाइक दैट, ओके। देन द वैल्यू लेबल, आउटकम ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ए वैल्यू लेबल। चलिए वैल्यू 1 क्या है, वन इज डेली, add to weekly, add 3 ये क्या है, every 2 week, every सर वैल्यू में लिख के हाँ 3 every 2 week, ठीक है। add 4 is every monthly, okay। add 5 is every 3 months, add 6 is every 6 months, sorry सर बोल रहे 6 is every 6 months, add, and the last is 7th is less often, साल में एक बार जाता हूं, so less often, add, and then say okay। तो इस तरह से आप वेरिएबल लेबल एंड वैल्यू लेबल। चलिए क्वेश्चन 2.1 क्या है, व्हाट वाज द रीजन, बट लेकिन ये टाइटल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं व्हाट वाज द रीजन, हाँ, व्हाट वाज द रीजन, और फिर लिखते हैं व्हाट वाज द रीजन एंड लिखते हैं SS डेटाबेस, okay। then the second one is find a book, so second one is book, third one is journal, okay। fourth one is thesis, sixth one is newspaper, sorry, newspaper, sixth is newspaper, 5 is newspaper, 6 is audio video, ऑडियो विजुअल okay, audio video, then 7 is computer, and the last one is फोटोग्राफी Xerox, photocopy okay। So now this is okay। Now the value label is no is zero, add, and one is yes, yes and then add, and then say okay। Now you know that the attribute means outcome of this variable are same like others। तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी एंड देन से पेस्ट कर सकते हैं आप। तो आपका टाइटल और वैल्यू लेबल आ गया।
now you can see the beauty of this SPSS. Go back to the data and see. Now you can see the data. You can see the data. यहाँ गलती कर दी है, यहाँ 2 कर दिया है. Actually यहाँ actually data होना चाहिए 0 and 1, 0 and 1. इसलिए यहाँ error है. ठीक है. बाकी आप देखिए टाइटल आ गया. Okay. Now you can do the same way code book for all. You can do the same as a for example मुझे last 3 वेरिएबल है, उसका वैल्यू लेबल और वेरिएबल लेबल करना है. ठीक है. तो मैं जाता हूं वेरिएबल व्यू और लास्ट कौन सा है? Q13 का टाइटल क्या है? जेंडर है. Q13 एज है. एज. चलिए एज और उसमें लेबल क्या है? वैल्यू लेबल वन इज लेस देन 25 वन इज लेस देन और इक्वल टू 25. Okay, and add and 2 is 26 to 35. 26 to 35. Okay, add. 2 ही कैटेगरी है ना. चलिए थर्ड Third one? है सर. थर्ड वन 35 प्लस 35 plus means 35 36 and plus, sorry, 36 plus. Okay, चलिए thank add. Okay, so now it's okay. Now second one is question 12. Question 12. Gender, sir. Gender. Male, female. Male, And female. one is male. male and 2 is female. 2 is female. 2 is female. Okay, add and then say okay. Then say okay, and you can see that measurement. You can see that scale, ordinal, nominal. So the moment you enter the data, computer will take care of measurement. So that is why I always teach first measurement of the data. Now you can go through the data. You can see this, male, female, this. Okay. Now you want to know in my survey how many male and how many female. डिस्क्रिप्टिव. हाँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मुझे जाना है कि मुझे जानना है कि मेरे ये सर्वे में ये ओनली 10 है, लेकिन अगर 10,000 है तो भी ये सेम टाइम लेगा. ठीक है. तो मुझे देखना है कि हाउ मेनी मेल एंड हाउ मेनी फीमेल इन माय सर्वे रिसर्च. ओके. सो फॉर दैट हाउ मेनी मेल, हाउ मेनी फीमेल, that is descriptive, and that variable is nominal. So frequency distribution is the best suitable statistics. So analyze descriptives, then say frequency, and then say gender, how many male and how many female, and then say okay, and then say click. Now you can see the table. So in my survey, 60% sample are from female and the 40% sample I have drawn as a male. Okay. तो आप इस तरह से इंटरव्यू शेड्यूल का डेटा एक्सेल में डालते हैं, एक्सेल से एसपीएसएस में लाते हैं, देन यू क्रिएट द कोड बुक एंड देन दैट डेटा यू एनालाइज विद द हेल्प ऑफ एसपीएसएस. एनी क्वेश्चन? देन आई विल गो फर्दर. आर यू, इज इट इंटरेस्टेड? Yes, sir. Yes, sir. How many participants know about SPSS? Yes, sir. Yes, sir. How many participants know about SPSS? Yes, sir. I am. Yes, sir. How many? Little 2, bit 3, 4, or everyone? Little bit, sir. Okay, okay. So now you understand the data file management, how you enter the data with the help of interview sheet with the code book. Understand? So Yes, sir. Yes. shall I close this data file? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, Okay, sir. but the question is, how many participants know about the multi-response technique? How many? Sir, I know. You know. Yes, sir. Okay. So this question I wants to know कि लाइब्रेरी यूज में डेटाबेस के लिए ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जाते हैं, थीसिस के लिए जाते हैं,
वो कैसे पता चलेगा? एनालाइज और उसके बाद में मल्टी रिस्पॉन्स में जाके सर पता चलेगा। चलिए चलिए आप मुझे बताइए, एनालाइज, एनालाइज और हाँ बस इसके नीचे मल्टी रिस्पॉन्स है ना सर, इसके अंदर हाँ चलिए फिर डिफाइंड वेरिएबल करना है सर। डिफाइन वेरिएबल सेट, देन यस, ऑल द वेरिएबल्स सबको इसके अंदर ले लेना है सर। ऑल द वेरिएबल, हाँ वेरिएबल, ठीक है, ऑल द वेरिएबल्स को ले लिया, ठीक है, फिर सर इसके बाद में काउंट वैल्यू देके फिर उसका दूसरा लेबल लगाना पड़ेगा सर, नया लेबल उसका लेना काउंट पड़ेगा। वैल्यू, वैल्यू कहाँ लगाना पड़ेगा? डायलॉग बॉक्स में सर। ये डायलॉग बॉक्स में, हाँ यहाँ? यस हाँ आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो? सर I can't recall now, but I know that sir, So that is why I say I will correct you. No, Yeah. there is no need to select all the variable. There is no need to select all the variable. okay sir, yeah. Instead you Yes. have to select all the variable which are multi response. Okay sir. multi-response. हाँ yes sir. आप समझ लीजिए क्वेश्चन हाँ, क्या सर। था कि आप लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं, तो आपने कहा कि मैं बुक के लिए जाता हूँ, जर्नल के लिए जाता हूँ, थीसिस के लिए जाता हूँ, न्यूज़पेपर के लिए जाता हूँ, जेरोक्स के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो Got it, sir. आउटकम है, तो आपका जो आउटकम है वो मल्टी रिस्पॉन्स है, हाँ ऑल वेरिएबल नहीं है। तो आपको क्लिक हाँ। करना है 2.1 से लेके 2.1 से लिए लेके 2.1 है लेके 2.8 8 तक, बस इतना लेना है और इसको लाना है टारगेट वेरिएबल में, ठीक है। फिर आपको कहना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नो। सो इंटरेस्टेड यस मीन्स 1, सो क्लिक 1 हियर। इज इट क्लियर? Yes, sir. हेलो, देन यू गिव द लेबल, क्या लेबल है कि रीजन, तो आपने लिखा है REASON, रीजन लेबल, वेरिएबल लेबल, एंड उसका पूरा लेबल लिखिए आप लिखिए व्हाट वाज द रीजन फॉर योर library visit. Okay, Yes, sir. and question mark. Okay, and Yes, sir, got question it. mark. Okay, question mark. Okay, and then Yes, say sir. click add, and then Add. say click add, and then say close. Now analyze multi response, and then say frequency. Now you can Yes. see that हमने क्या किया, पहले फिर से सुन लीजिए, बहुत Yes, sir. ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन एक था, उसका आउटकम 8 था, क्वेश्चन एक था, आउटकम 8 था, हमने 8 वेरिएबल बना दिया, 8 वेरिएबल बना दिया और नो यस किया। अब मल्टी रिस्पॉन्स टेक्निक में फिर से 8 वेरिएबल को एक वेरिएबल कर रहे हैं, फिर से एक वेरिएबल को एक वेरिएबल कर रहे हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं मल्टी वेरिएबल। और आपने इसको सिलेक्ट किया एंड देन से ओके। नाउ यू कैन सी दैट। आप सीखिए कि कितना रिस्पोंडेंट था, 11। कितना रिस्पोंडेंट था, 11। आप देखिए वहां 10 रिस्पोंडेंट, ये देखिए ये 10 रिस्पोंडेंट कितने थे, 10। 10 स्टूडेंट के पास से हमने डेटा लिया, लेकिन रिस्पॉन्स कितने हैं, 41। रिस्पॉन्स कितने हैं, 41। तो अब आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स, आप वाइस चांसलर, आप सुनिए, आप वाइस चांसलर के पास जाते हैं और आप कहते हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कि सर आपकी लाइब्रेरी में डेटाबेस जो है, डेटाबेस वो 14.6% है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो लाइब्रेरी में जो करते हैं वो 2 चीज के लिए करते हैं, एक जर्नल के लिए और दूसरा बुक्स के लिए। तो आप अगर लाइब्रेरी की सर्विस अच्छी कर दी है तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 2 कंपोनेंट।
फिर आप लाइब्रेरी का सेटिस्फेक्शन देखिए कि जो लोग एसएसडी डेटाबेस, जो लोग बुक्स और जर्नल कह रहे हैं, और उनका सेटिस्फेक्शन क्या है, समझिए आप? यू Yes, गॉट sir. इट, यू गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. Got it. सो फिर आता है कि कौन सी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स ये जो है डेटाबेस, बुक, जर्नल, थीसिस है, उसमें से कौन सी डिसिप्लिन क्या यूज करती है। ये तो सिर्फ 10 स्टूडेंट का है, लेकिन मुझे देखना है कि मेल और फीमेल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। इसको क्या कहते हैं? यूनिवेरिएट एनालिसिस। इसका मतलब वन वेरिएबल एट ए टाइम, वन वेरिएबल एट ए टाइम, ठीक है। अब मैं जाता हूं बाइवेरिएट एनालिसिस, मींस one variable effect on the second variable. One is row variable and second one is column variable. तो चलिए मैं यही डेटा को देता हूं, एनालाइज, मल्टी रिस्पॉन्स एंड देन से क्रॉस टैब्स। आपका ये वेरिएबल है, रो वेरिएबल है, ठीक है, और कॉलम है आपका, मान लीजिए जेंडर इज योर कॉलम वेरिएबल, और उसकी रेंज है 1 and 2, ठीक है। 1 इज मेल एंड 2 इज फीमेल, ठीक है। आपको कहना है, मान लीजिए परसेंटेज यू चाहिए, तो परसेंटेज यू कैन पुट इट हियर, रो एंड कॉलम परसेंटेज चाहिए, एंड देन से कंटिन्यू एंड देन से ओके। अब देखिए, नाउ यू हैव ए बाइवेरिएट टेबल कि मेल एंड फीमेल। तो आपका जो 10 स्टूडेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेल एंड फीमेल का। अब देखिए 10 स्टूडेंट है, उसका मेल एंड फीमेल का रिस्पॉन्स क्या है। तो ये जो परसेंटेज है, आप देखिए पहले में फीमेल 6 है, ये नीचे 10 है, रिस्पोंडेंट है, नीचे जो है वो रिस्पोंडेंट है, और ये जो है वो रिस्पॉन्स है। गॉट इट? यू अंडरस्टैंड? तो Yes, sir. Yes, sir. जर्नल, यस सर, तो जर्नल यस यस, जो जर्नल था, जो 10 यस सर, यस सर, 10 रिस्पॉन्स जर्नल में थे, उसमें आप कह सकते हैं फीमेल आर मोर फीमेल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन जर्नल देन द मेल। तो आप समझे, पहले हमने क्या फाइंडिंग कहा कि स्टूडेंट्स आर मोर फोकस ऑन बुक्स एंड जर्नल, ओके। फिर हम आए, स्टूडेंट्स की बात नहीं कह रहे, हम बात कर रहे मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। गॉट इट? समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. तो इसको कहते हैं मेल और फीमेल में हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ठीक है। तो थर्ड वन इज कि अब आप क्या कर रहे हैं कि ये जो है इसको है, अब आपको देखना है थर्ड वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो एनालाइज, फिर आते हैं मल्टी रिस्पॉन्स, और कहते हैं क्रॉस टैब्स, और यहाँ एक और वेरिएबल जिसको हम मान लीजिए कहते हैं एज को कहते हैं। क्या एज भी फर्क पड़ता है? तो फिर एज में 3 रेंज है, 1 to 3, 1 to 3 एंड देन से कंटिन्यू एंड देन से ओके। तो ये आपको मिला, देखिए एज लेस देन और 25, और फिर उसमें ये, तो इसको कहते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। दैट मीन्स मोर देन 2 वेरिएबल, 1 रो एंड कॉलम, एंड द थर्ड वन इज कंट्रोल। तो देखिए मेल फीमेल के अगेंस्ट में क्यों जाते हैं लाइब्रेरी में, किस पर्पस के लिए? तो ये जेंडर के अगेंस्ट में, और बाद में यहाँ एज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेस देन और इक्वल टू 25 और 26 to 35 एंड 36 एंड प्लस। सो आप समझ गए, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके So ओके, understand? So this is a dummy data. Yes, sir. Understand. Okay. So this is a dummy data. Can I have a 5 minutes break? Close the data file. Okay. Now I will first install the, I will invoke in SPSS. Okay. In SPSS, there are n number of data files.
n number of data file in subdirectory sample. Sample नाम की subdirectory में data है. If I want to introduce one data to understand the SPSS various command, at the same time to interpret the result, I need a good सैंपल बेस्ड डेटा. जहां ऐसा डेटा मुझे चाहिए, आपको मालूम है, यू नो दैट if you consider universe or you consider sample, then only you can use the parametric statistic. Otherwise you have to use non-parametric statistic. Okay, parametrics means आपने सैंपल ड्रॉ किया है, गांव में 100 पीपल रहती है और उसमें से आपने सैंपल ड्रॉ करके आपने 30 या 40 पीपल लिया है, तो then only you can generalize or then only you can use the parametric statistics. तो ये सब बेसिक चीज है. चलिए हम एक फाइल को ये करते हैं. मैं कहता हूं कि रिसेंटली मैंने जो फाइल यूज की है, तो मैं उसको यूज करता हूं एम्प्लॉय डेटा फाइल. चलिए, एम्प्लॉय डेटा फाइल you can upload in your computer also, okay, और डाउनलोड द कंप्यूटर. आप सैंपल के में से भी अपलोड कर सकते हैं और आप SPSS में से भी आप स्विच ओवर कर सकते हैं. तो once you have a SPSS data file, that is a employee data file, now I want to process, or before I want to process, I want to group this salary begin and salary current salary in a 2 or 3 class. Okay, तो मुझे इसको रिकॉर्ड करना है. SPSS में बहुत सारा कमांड है, जैसे वेरिएबल, वैल्यू लेबल, फिर आपको मिसिंग है, ये मिसिंग वैल्यू इसलिए है कि मान लीजिए इनकम नाम का डेटा है, इनकम, करंट सैलरी या बिगिनिंग सैलरी, और उसमें किसी ने कहा कि रिटायर्ड मीन्स इनकम आ रही है लेकिन वो कह रहा है कि नॉट एप्लीकेबल, और आपने 99 कोड किया है. ठीक है, 9 और 99. वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज, आपको वो जो नॉट एप्लीकेबल, नो इंफॉर्मेशन, डोंट नो, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. आप एक्सक्लूड करेंगे तब आपको प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा. यू अंडरस्टैंड? तो हाउ यू एक्सक्लूड दैट कैटेगरी? तो आप करंट, फॉर एग्जांपल ये करंट सैलरी है और वहां किसी ने कहा है कि 9 मीन्स नो इंफॉर्मेशन, इनकम की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप यहाँ 9 नंबर लिख दीजिए. तो when data is in analysis process, जहां 9 नंबर होगा, that means missing value, it exclude from the analysis part. Okay, so out of 500 cases, आपके डेटा में 12 या 15 केसेस में 9 नंबर है, तो वो 488 में से एवरेज निकालेगा. आउट ऑफ 512 में से डेटा निकाल के 488 में से रिजल्ट निकालेगा. सो दैट इज द पर्पस ऑफ मिसिंग. जहां भी आपको लगता है कि नो इंफॉर्मेशन को एक्सक्लूड करना है, तो वो कोड यहाँ आप कर दीजिए, जो मैंने कहा कि नो इंफॉर्मेशन, डोंट नो, फॉर दैट 9 and 99. ओके, बाकी तो अलाइनमेंट एंड दिस आर नॉट important is type numeric and string. For example, male and female, you can see the coding pattern. F is female, M is male. F is female, M is male, and that is why string. Otherwise date means here, instead of asking age, रिस्पोंडेंट को पूछा है कि आपकी बर्थ डेट बताइए, और इसलिए इसने यहाँ फॉर्मेट में डेट लिखा है. करेंसी की जगह आप डॉलर कर सकते हैं, रुपीस कर सकते हैं, तो करेंसी नाम का है. बट बाय एंड लार्ज इन सोशल साइंस only 2 data type, one is numeric and second one is string. But 99% social scientists convert the data into numeric rather than string. Okay, now I go through this data, and first thing is, if I want to know that this data, the descriptive statistic suggest me that how many male employee in this firm, how many female employee
in this organization. Okay, number one. Second is how many in clerical or managerial. You can see that clerical, custodian and manager. So I want to know how many employee are in managerial post, clerical post and in custodian post. Okay, so these are the three posts. Okay, so I want to know the percentage. Second thing is I want to know the average current salary in this organization, average beginning salary in this, average education level in this variable. Okay, so what is the command? That analyze descriptives, then say descriptives, and and when I say descriptive, then I am considering mean, median, mode, like that, skewness, variance, like that. Okay, I'm just giving you input. What are the use of quartiles and skewness? These two statistics give the idea of normality. You can see my slide. I will give you the slide. The Yes, sir. normality you can judge from these two statistics. Okay, from these two statistics. So you can use these statistics for whether, and once you establish कि 10 मेरा डेटा नॉर्मल है तो आप एवरेज निकाल सकते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि एवरेज इनकम इतनी है. ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा. चलिए, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कर रहे हैं तो व्हेन आई चूज डिस्क्रिप्टिव, दैट मींस कैटेगरी वेरिएबल नहीं आएगा. जो भी कैटेगरिकल वेरिएबल है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, उसका डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है. डिस्क्रिप्टिव किसका होता है? रेशियो वेरिएबल का. तो रेशियो वेरिएबल क्या है? एजुकेशन लेवल है, करंट सैलरी है, बिगिनिंग सैलरी है, मंथ ऑफ हायर है, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है. ये सब का एवरेज, मीन, मीडियन, मोड निकल सकता है. एंड देन से ओके. तो यू कैन सी दैट education level minimum 8 and maximum 21. 8 means, for example 8 year after this, that means हम चूज करें कि स्टैंडर्ड 1, that is education level 1, standard 2 education level 2, standard 3 education level 3, like that. So 8 year means 8 standard, and 21 means postgraduate or more than postgraduate. Just I'm assuming. So education level minimum 8, 21, and the average 13.41. And you can see the standard deviation 2.8. So the deviation is not too much, so I can consider. But again, this data I have to check. This data is normal or not. I can check with the help of statistic. Then the current salary 15,750, the minimum current salary, and the maximum is 1,35,000. And you can see that the average is 34 and the variation is 17. So I can definitely say that this current salary and beginning salary are not normal. From this statistic I can show you. You can see. So descriptive statistics give you some idea. Descriptive statistics. Now I want to analyze the categorical analysis. So analyze descriptives, that frequency, because categorical analysis, gender is a categorical analysis, then employee category is a category analysis, minority classification, categorical analysis, and then say okay. So now you can see this. Out of 474 employee, 216, that is 45.6, that is 45.6% female employee in this form. 258, that is 54.4% in male. Employee category, clerical, custodian and manager. हमें पता चलता है कि ये बैंक का डेटा है क्योंकि कस्टोडियन है, मैनेजर है. तो बैंक में 76.6% मीन्स ऑलमोस्ट 77% जो एम्प्लॉय है वो क्लरिकल पोस्ट में है. रिमेनिंग जो है उसमें 5.7% कस्टोडियन है और
18%, ऑलमोस्ट 18% मैनेजरियल पोस्ट में है। ठीक है, चलिए एक और चीज, ये परसेंटेज एंड वैलिड परसेंटेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड वैलिड परसेंटेज? परसेंटेज मीन्स out of 474 percentage, out of 474 valid percentage. That means when there is no missing, then the percentage and valid percentage remain same. And the cumulative percentage means this plus this plus this. So this is a cumulative percentage. 76 plus 5.7, that is 82. 82 plus 17.7, that is 100. So cumulative percent is also interesting statistic. Suppose you want to make a group from your data, तो आप मान लीजिए 3 ग्रुप करना चाहते हैं, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज 33 करके आप ग्रुप कर सकते हैं। तो cumulative percentage is also important when you are transferring ratio variable to categorical variable. Categorical means either in ordinal or in interval. ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप चार्ट भी कर सकते हैं, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव्स, देन फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको कहा था ना कि आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन, मुझे टेबल्स नहीं चाहिए, ओके, एंड चार्ट, आई से पाई चार्ट इज द बेस्ट फिटेड चार्ट फॉर द यूनिवेरिएट, एंड देन से, एंड यू वांट परसेंटेज, एंड देन से कंटिन्यू, एंड देन से ओके. So now you can create with the help of SPSS a chart. Okay. Oh, what is the upper? Okay. So now you can see the chart. So you can generate the employee chart from the data. So this is a single variable analysis, univariate analysis. Now I want to know, is there any gender is the key variable or deciding variable when the recruitment is going on. समझे मैं क्या कह रहा हूं, कि क्या ऐसा लगता है कि जब रिक्रूटमेंट होता है क्लरिकल, मैनेजरियल और उसमें, क्या जेंडर इज अ की वेरिएबल, या वन डिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट, वन इज रो एंड सेकंड वन इज कॉलम, तो क्या ये मुमकिन है? तो अगर मुझे ये जानकारी देखनी है और आई हैव टू एग्जामिन, देन आई विल गो फॉर एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव्स, then say cross tabs, and then say gender is a row variable and the employee category is a column variable, and I say cell is row and column percentage, and then say continue, and then say okay. Now you can see the table. This table explain you different thing. Earlier, how many male, how many female, how many in clerical post, how many in managerial post, but here how many female in clerical, how many female in custodian, how many female in managerial. This is a bivariate. Understand? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. So now out of 216, 206, that is almost 95.4% female employee in the clerical post. Out of 216, 206, that is a row percentage. This is a row percentage. This is a row percentage. Out of 216, 206, that is 95.4% in a clerical post, 4.6% in managerial post. At the same time, when I consider the distribution of male employee, there are 258 male employee. Out of 258, 157 male employee in clerical post. That is a 60% compared to 95. Here 60%. So you can see the difference. Here 95% female employee in clerical, whereas here 60%, whereas 10.5% in custodian, whereas here no one, not a single woman in custodian. Here, but in managerial, 28.7%.
Here it only 4.6%. Even within the category, within the clerical, that is a column percentage. Within the clerical, now I will go through the across the gender, male female. पहले मैंने देखा है विदिन फीमेल एंड विदिन मेल, अब मैं विदिन क्लैरिकल देख रहा हूं, तो दैट इज अ column percentage. So out of 363 clerical employee in the clerical post, that is a 363, and the distribution of percentage is 206 are in the female. So that means 56.7%. तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं फीमेल का भी देखूं तो फीमेल में भी ज्यादातर फीमेल क्लैरिकल में कंपेयर टू मेल, लेकिन क्लैरिकल में भी मेल फीमेल का कंपेयर करते हूं, क्लैरिकल में ही के कंपेयर करता हूं, तो वहां भी आपको 56.7 एंड 43% है. सो दिस इज अगेन ए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक. बट आई वांट्स टू नो कि whether this gender as a association with employee category. Okay, so my null hypothesis is as gender and employee category both are independent variable, and the alternative hypothesis is the gender and the employee category both are indeed related. So for that I will go for chi-square. Goodness of it, whatever you can say, descriptive statistic, cross tabs, and I can say statistics, and then say chi-square test, and then say continue, and then say okay. Now the thumb rule, I already mentioned the misuse of p-value. The thumb rule in any statistical procedure, whether it's a correlation, regression, ANOVA, factor, then conjoint analysis, whatever, the thumb rule is if the value of p is less than or equal to 0.05, then do not accept your hypothesis. That means not accept your hypothesis means null hypothesis that both are independent, both are independent. There is no association between these two. Okay, that was our hypothesis. Here the value of p is less than or equal to 0.05, less than or equal to 0.05. That means we will not accept our hypothesis. That means there is association between gender and employee category. Is it clear? समझे आप मैंने क्या कहा? Yes sir, yes sir. So like that, once you have a good data, once you have a good measurement of the data, then tap it into the Excel, transfer into SPSS, and then start thinking that okay, this table is okay, this table is okay. In the earlier table almost here it is a 4.5 and here it is a 28. That means almost 24%, 24% women मैनेजर की पोस्ट में कम है. मेल के कंपेयर में 24% वीमेन को रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं है. वो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो डिस्क्रिप्टिव है. लेकिन यहां आपने chi-square टेस्ट ये गुडनेस ऑफ फिट से बता सकते हैं कि नहीं ये चांसेस ऑफ एरर नहीं है, ये सैंपल में चांसेस ऑफ एरर नहीं है. ये टेबल दिखा रहा है और chi-square वैल्यू दिखा रहा है कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड द एम्प्लॉय कैटेगरी. और हम कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है बैंक की, उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है. फीमेल आर गेटिंग लेस अपॉर्चुनिटी इन मैनेजरियल पोस्ट एंड मेल आर getting more opportunity in managerial post. Okay, so that is your conclusion. But again, as a researcher, are you convinced with this finding? That is the best. That is the question mark. क्या आप ये जो फाइंडिंग है वो फाइंडिंग से आप संतुष्ट है? तो मैं कह रहा हूं कि नहीं. There are two reasons. One, इसलिए कि पहली चीज है कि ये इंटरव्यू शेड्यूल में एक चीज नहीं पूछी है कि क्या
फीमेल और को पूछा है कि आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी कि नहीं, अगर मिली थी तो आपने एक्सेप्ट की थी कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन होता तो आप कुछ फिल्टर कर सकते थे कि चलिए कुछ फीमेल को मैनेजरियल की पोस्ट मिली थी, बट बिकॉज ऑफ देयर सोशल प्रॉब्लम, ट्रांसफर ऑफ जॉब, आपको अलग सिटी में जाना पड़ेगा, you are more accompanied with your children, you are more accompanied with the family, तो and that is why you have decided कि आप प्रमोशन नहीं ले रहे। क्या इस तरह का क्वेश्चन आपका इंटरव्यू शेड्यूल में है? नहीं है। तो आप ये स्लिपिंग स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जेंडर आर गेटिंग लेस अपॉर्चुनिटी, वो तो आपने ड्रॉ कर दिया, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये है। नंबर वन, ये आप डिस्कशन में कर सकते हैं। नंबर टू किस बैंक की बात कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये कोऑपरेटिव बैंक में हो रहा है, ये प्राइवेट बैंक में हो रहा है, ये नेशनलाइज बैंक में हो रहा है, या ये फॉरेन बैंक में हो रहा है? तो टाइप्स ऑफ बैंक आपने पूछा नहीं है, टाइप्स ऑफ बैंक आपने पूछा नहीं है। तो ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी का जो जिक्र कर रहे हैं वो किस बैंक की बात कर रहे हैं? दैट मीन्स आई एम नाउ इंडिकेटिंग द रिसर्च गैप। नाउ आई एम इंडिकेटिंग रिसर्च गैप। तो मैं जब ये डेटा को या मैं इसको एनालिसिस करूंगा तो पहला मैं पूछूंगा टाइप ऑफ बैंक। तो मैं नेशनलाइज बैंक के भी एम्प्लॉय लूंगा, कोऑपरेटिव का भी लूंगा, प्राइवेट बैंक का लूंगा, और वहां ये सिचुएशन देखूंगा। नंबर वन। नंबर टू, चलिए आपको लगता है कि ये रिसर्च गैप है इसलिए, लेकिन आपको कहना है कि वीमेन इनजस्टिस है, वीमेन इनजस्टिस है। तो क्या वीमेन इनजस्टिस है? तो मैं कहता हूं चलिए एक और टेबल देखते हैं, एंड दैट टेबल क्या चेंज कर सकता है? मेरा आज का जो कंक्लूजन है उसको चेंज करता है। इज इट ट्रू कि नाउ नेक्स्ट स्टेज, if I analyze the next table and that table give you something more information, so that my earlier conclusion is need to edit, okay? So I am taking one more table, analyze, so univariate to bivariate, and now I am going to multivariate, descriptives, cross steps, and then I'm putting a control variable, minority classification, and then say okay. Now you can see the table. So minority no and minority yes. Minority no means, for example, data is related to USA, then minority yes means non-white, and minority no means white. Okay. In India, Hindu and other than Hindu. Okay, so minority no and yes. So those female employee from the minority, yes means minority, are not a single opportunity as far as managerial post is concerned. Now आप देखिए, और जो 10 से 10 वुमेन थी वो माइनॉरिटी नो में है। ठीक है, तो आप समझिए, अब मेरा अर्लियर कंक्लूजन था वीमेन इनजस्टिस, फीमेल आर गेटिंग लेस अपॉर्चुनिटी। अब कंट्रोल वेरिएबल की वजह से अब मैं मेरा जो अगल का जो कंक्लूजन था वो कंक्लूजन को मैं एक रिविजिट करता हूं, एक रिफाइन करता हूं और कहता हूं कि सही है, women are getting less opportunity as far as higher post is concerned, but minority women को तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है। वहां तो लेस अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, यहाँ तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट फेस आता है रिक्रूटमेंट का, तो आप मैनेजरियल पोस्ट में माइनॉरिटी की विमेन को पहला प्लेसमेंट दीजिए। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, मेरा जो अर्लियर कंक्लूजन था वो कंक्लूजन को और मैंने फिल्टर किया, रिफाइन किया। तो इस तरह से रिसर्चर अपने ही डेटा को समझ के एक कंक्लूजन पे आता है एंड देन कन्विंस कि नहीं ये सही है। अब आपको लगता है कि नहीं, लेकिन
ये जो फीमेल है, हो सकता है कि उसका क्वालिफिकेशन कम हो सकता है उसका एक्सपीरियंस कम हो, इसलिए, या हो सकता है एक और क्वेश्चन भी इसमें नहीं है कि फॉर प्रमोशन there is a banking exam every year, every 6 months. तो क्या फीमेल वो एग्जाम में पास होती है, नहीं होती है, और उसके बाद उसको मैनेजरियल पोस्ट नहीं मिलती है? तो ये सब चीज इसमें डेटा में नहीं है, तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो आप क्या करते हैं, विद इन दिस डेटा आपको बताना है कि नहीं, फीमेल आर गेटिंग लेस अपॉर्चुनिटी, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो एक और टेबल हम निकाले, कैसे कि पहला आप क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट, और क्या करते हैं कि डिफरेंस किसका डिफरेंस, कि करंट सैलरी माइनस बिगिनिंग सैलरी, ठीक है, सैलरी बिगिन। ये मैं क्या कर रहा हूं, सुनिए, अब मैं सिर्फ मैंने कहा ना कि भाई क्वालिफिकेशन, कोई कहेगा आपको कि भाई क्वालिफिकेशन कम होगा इसलिए मैनेजर की पोस्ट नहीं है, एक्सपीरियंस कम होगा इसलिए मैनेजर की पोस्ट में नहीं है, तो ठीक है, आई विल कन्विंस वॉट एवर योर ऑब्जर्वेशन इज ओके, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अब ये डेटा में मैं सिर्फ क्लैरिकल का डेटा लेता हूं, सिर्फ क्लैरिकल का, जहां तो क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है, जहां सैलरी बिगिनिंग और सैलरी करंट है, तो करंट सैलरी में से बिगिनिंग सैलरी में सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस को मुझे मेल फीमेल में देखना है, वो डिफरेंस को, अगर वो डिफरेंस है तो मैं कह सकता हूं कि नॉट ओनली द रिक्रूटमेंट पॉलिसी, इवन आपकी प्रमोशन पॉलिसी भी गलत है। चलिए, मुझे इसका देखना है, तो कैसे, ओके, तो आपके पास सैलरी डिफरेंस आ गया, ठीक है, डेटा में सैलरी डिफरेंस आ गया, ठीक है। चलिए, मैं कहता हूं मुझे सिर्फ क्लैरिकल स्टाफ ही चाहिए, सेलेक्ट द केसेस, और मुझे मालूम है कि इफ कंडीशन और एजुकेशन, एम्प्लॉय कैटेगरी क्लैरिकल, एम्प्लॉय कैटेगरी इक्वल टू जॉब कैटेगरी इक्वल टू 1, मुझे मालूम है कि 1 इज इक्वल टू क्लैरिकल, and then say continue, and then say okay. Now go back to the data. You can see the first data omitted, cross mark. This cross marks means at the time of analysis ये डेटा को ड्रॉप कर देंगे, मीन्स मैनेजर का है इसलिए ड्रॉप कर दे, क्लैरिकल डेटा को ही कंसीडर करेंगे, फिर मैनेजर आया तो ड्रॉप कर दिया। अब मेरा डेटा सिर्फ क्लैरिकल के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो मैं अप्लाई करता हूं एनालाइज मीन्स टेबल, कंपेयर मीन्स, मुझे 2 ग्रुप में देखना है, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट और टेस्ट वेरिएबल है डिफरेंस, और ग्रुप वेरिएबल है जेंडर, ठीक है, और उसमें डिफाइन है मेल एंड फीमेल, एंड देन से कंटिन्यू, एंड देन से ओके, नाउ यू कैन सी दैट कितना है, मेल को क्लैरिकल, देखिए क्लैरिकल पोस्ट में जो मेल है वो एक ज्वाइनिंग के टाइम और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रमोशन के बाद जो सैलरी उनकी होती है, तो उसका जो डिफरेंस है वो 15,000 ऑन एन एवरेज, $15,600 उसको मिल रहा है, जबकि फीमेल आर गेटिंग 12,000 समथिंग। तो आपको दिख रहा है कि $3,000 का डिफरेंस दिख रहा है, और क्या टी टेस्ट कह रहा है, तो टी टेस्ट में देखिए सिग्निफिकेंट वैल्यू P लेस देन और इक्वल टू 0.05, तो आप कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंटली है। आप कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल का एवरेज और फीमेल का एवरेज, तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि नॉट ओनली द रिक्रूटमेंट पॉलिसी, यहाँ तो आप ये जो प्रमोशन है ओवर द पीरियड ऑफ इवन क्लैरिकल पोस्ट में फीमेल को लेस सैलरी मिलती है देन द मेल। So these kind of statistics, these kind of analysis are more and more useful when researcher doubting in her conclusion or his conclusion. जब आप एक conclusion पर आते हैं
तो कंक्लूजन को खुद को डाउट करते कि नहीं ये सही है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, एंड देन फाइनल कंक्लूजन पे आके कहता है कि ठीक है, रिक्रूटमेंट में आप कह दो कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, लेकिन क्लैरिकल पोस्ट में भी एवरेज डिफरेंस है. तो this is the way you analyze the data. So I think I don't know whether I can convince you or whether I can reach you with the help of SPSS. Is there any question? No, sir. Enjoy? Did you enjoy? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Really very enjoy, sir. Yes, sir. Yeah. Actually, that is if the classroom lecture, then it is better. But I really thanks to Only the frequency table you have decomposed in an elaborative way, sir. Only frequency table you have already decomposed univariate, bivariate, multivariate way, and only the category. Yeah, frequency distribution means you are considering the categorical variable. Okay, that is why frequency distribution. But if you have a actual income, actual land, then frequency distribution is not possible. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So I really thanks to Professor Rajendra Bhai to give me opportunity to interact with the faculty member and the research scholar. But is there any question? You can write me, or you can talk to me via my mobile, or you can write to me on email. You can get the email from Rajendra Bhai. Okay. Thank you, sir. Any Okay, question? Please supply your mobile number and email ID, sir. You just write down 91737 91737 91737 12391. 12391. Thank you, sir. Okay. Any question? Thank you, sir. So how researcher step by step analyze the data and understand the data pattern. Actually, in quantitative, pattern is important. In quantitative data, pattern is important. But in qualitative, pattern is not important. In qualitative research, variation is important. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. आप देखिए फोकस ग्रुप करते हैं, क्वालिटेटिव में फोकस ग्रुप करते हैं, तो फोकस ग्रुप देखिए कैसे करते हैं. आप जहां बैठे हैं स्टेक होल्डर, तो फोकस ग्रुप में एक जवाब दे रहा है, कोई डिस्कस कर रहा है, फिर सेकंड वन आता है और वो सेम बात कर रहा है, सेम बात करता है, तो रिसर्चर क्या कहता है, नहीं वो चीज आ गई, जो आप कह रहे हैं वो चीज आ गई, कुछ नया कहना है. इज इट क्लियर? Yes, You sir. understand? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वालिटेटिव में सैंपल साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वेरिएशन. कितनी वेरिएशन में इंफॉर्मेशन मिलती है, इसको क्वालिटेटिव. जब क्वांटिटेटिव में क्या है सॉरी, क्वांटिटेटिव में हम जनरलाइज करते हैं, इसलिए पैटर्न की बात होती है. पैटर्न की कितने परसेंटेज क्या कह रहे हैं, कितने परसेंटेज में क्या हो रहा है. अंडरस्टैंड? इसलिए सैंपल साइज इंपॉर्टेंट, सैंपल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट. वो सब्जेक्टिव है, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव है. तो ये अप्रोच ही अलग है. ठीक है. तो अब आप ये एनालिसिस करते हैं, तब आप एनालिसिस में रिव्यू ऑफ लिटरेचर को ले आइए कि ठीक है, ये टेबल ये कह रहा है, लेकिन रिसर्चर ने अगर टाइप्स ऑफ बैंक लिया होता, रिसर्चर में इस प्रकार का क्वेश्चंस लिया होता, तो मोर क्लैरिटी आपको एनालिसिस में मिलती. जो अभी जो कंफ्यूजन है कि व्हाई वीमेन आर गेटिंग लेस अपॉर्चुनिटी, वो यहां होता. थर्ड थिंग्स यहां रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप ला सकते हैं कि ऑथर एक्स और वाई ऑल्सो स्टडी ऑन द बैंकिंग सेक्टर, और वहां भी इस प्रकार की पैटर्न उन्होंने पाई है. तो नॉट ओनली you explain your table, not only you explain your statistics, but you can also mention the earlier version of the research
here. And then you say that, for example, in 2015 someone has study और आप 2022 में कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि not only this pattern I have found in 2022, the same pattern X or Y researcher found in 2015. और फिर लिख सकते हैं in last 7 years nothing is concrete in recruitment policy of banking sector. तो आप समझे, तो आप एक मैक्रो से माइक्रो तक ले जा सकते हैं, समझे आप। तो ये एनालिटिकल रिसर्च का एक ब्यूटी है। चलिए, थैंक यू Thank you, sir.